ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੌਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲਾਂ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ नहीं है, उसका नतीजा हैगी है? देखिए हरदीप जी, ऐसे समझिए कि आरएसएस और बीजेपी का जो रिलेशन है वो माँ बेटे का रिलेशन है ना, माँ बेटे का रिलेशन है। और इस रिलेशनशिप को कोई आसानी से समझ नहीं सकता। एक दूसरे के बीच में बातें, मीडिया, खबर जी से देखा है, बिल्कुल जाना है, तो मैं कह सकता हूं कि सब कुछ ठीक होने का प्रश्न ही नहीं है। आरएसएस मदर संगठन है और भाजपा की उसके बिना हैसियत बिल्कुल कम है जी। तो ऐसे में कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है। हाँ, संगठनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं हो सकता, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के बीच में मनमुटाव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी, क्योंकि दुनिया में सब कुछ संभव है। तो हो सकता है कि जो आरएसएस के मोहन भागवत हैं, वो जो कह रहे हैं, विपक्ष उसका निहितार्थ सिर्फ इसलिए निकाल सकता है कि क्या कोई हम विवाद की बात कर रहे हैं, कोई विचारों में मतभेद की बात कर रहे हैं, पर संभव होता नहीं ऐसा लगता कि आरएसएस और भाजपा में वर्तमान में कोई दिक्कत हो, क्योंकि भाजपा ही वो पार्टी है जिसने आरएसएस के सपने को साकार किया है और उसी सपने पर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में मनमुटाव होना मुझे नहीं लगता कि ये विपक्ष की बनाई बात हो सकती है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके नाल ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनी है, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? बात आपकी ठीक है। लालकृष्ण आडवाणी को 75 का नाम लेके हटाया गया था, पीछे साइड में किया गया था, उसके पीछे कई और भी कारण थे। आप देखिए, कई बार क्या होता है, राजनीति में सामने कुछ और होता है और दिखावा कुछ और होता है जी। लालकृष्ण आडवाणी एक बार जिन्ना की मजार पर जाकर कहीं ना कहीं आरएसएस की फैमिली में अपने आप को कहीं ना कहीं डेंटेड हो गए थे, और इसके अलावा भी उन्हें लग रहा था कि एक बार आडवाणी जी को मौका मिल गया है, और चूंकि उनकी उम्र 80 के पास उस समय पहुंच गई थी, अब इस समय आडवाणी 98 के हैं, और अगर आप 12-13 साल पुरानी बात करें तो उस समय भी वो लगभग 80 के आसपास, 80 से ऊपर के थे जी। तो ऐसे में
ऐसे में मुझे लगता है कि आरएसएस ने ये सोचा होगा कि इनमें पहले ही एनर्जी खत्म हो चुकी है और ये विपक्ष में स्वीकार्य होने लगे हैं। जबकि आरएसएस का एजेंडा ये था कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी को स्वीकार्य ना हो और जो धौंस के साथ, धमक के साथ, जिद के साथ आरएसएस के रास्ते पे चले। जी। अब देखिए, कश्मीर से 370 को हटाना हो या सिंधु नदी का पानी रोकना हो, देखिए चाहे पहलगामी घटना का एक ऐसा मौका हुआ कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी ने वो कर दिखाया जो जो आडवाणी। तो मुझे लगता है आडवाणी को हटाने के पीछे सिर्फ एक एज का रीजन नहीं रहा, कहीं अन्य भी रीजन रहे होंगे, लेकिन मुद्दा एज का बना के इस मामले को हटा दिया। एक और बात मैं हरदीप जी आपको बता दूं जी, ये 75 की बात आई क्यों? दरअसल जिस कार्यक्रम में मोहन भागवत बोल रहे थे जी, क्या उन्होंने उस कार्यक्रम में मोदी जी का नाम लिया? नहीं लिया। फिर 75 की बात कहां से आई? क्योंकि वो जिस चीज के कार्यक्रम में गए थे वो है उसकी 75वीं वर्षगांठ थी जी। तो जाहिर है उन्हें उस मुद्दे पर कुछ बोलना था, तो उन्होंने इस बात को बोला। और एक छोटे से कार्यक्रम में उन्होंने वो, हम सब ये भी जानते हैं कि मोहन भागवत भी 74 साल के हैं और मोदी जी भी इस साल में 75 साल के होने को जा रहे हैं जी। उन्हें पता था कि दोनों लीडर सितंबर महीने में होंगे 75 साल के जी। हाँ, तो ऐसे में हमें लगता है कि उन्हें ये बात की सिंसियरिटी थी कि इसका क्या मतलब निकलता है, लेकिन उन्होंने इस बात को तूल नहीं दिया। लेकिन ऐसा भी संभव है कि वहां पर इस तरह की बात भी रही हो कि क्यों अकेला मोदी ही 20 साल तक खींचे, क्योंकि आरएसएस में परंपरा है कि नई लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से हम तैयारी की बात कर रहे हैं, लगातार अलग अलग राज्यों में नए सीएम, चाहे उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जिस तरीके से नए सीएम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि मोदी जी का भी सक्सेसर तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है यही वजह है। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। हरदीप जी, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। और देखिए, कमरे के अंदर क्या होता है वो कोई नहीं जानता है। विपक्ष और मीडिया कयास लगाता है, बॉडी लैंग्वेज से, बोली हुई बात से, ट्विटर की पोस्ट से अंदाजा लगाता है कि क्या हुआ होगा, अनटिल अनलेस कि अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए जी, तो संभव है किन्हीं मुद्दों पर बात ना बन पाती हो। अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही मुद्दा ले लीजिए, मुझे लगता नहीं कि सिर्फ एक राज्यों के अध्यक्षों के चुनाव ना हो पाने की वजह से जेपी नड्डा जी की जगह नए आने वाले अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा। संभव है कुछ न कुछ मुद्दे रहते होंगे जिनमें असहमति की बात हो सकता है। तो असहमति होना, विरोध होना और मनमुटाव होना और विद्रोह होना, ये सब अलग अलग हैं। राजनीति में इन बारीकियों का बड़ा महत्व है जी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी देश के, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, सक्सेसफुल रहे, जब तक रहे जीते। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री रहे, तीसरा टर्म है और लगातार 3 बार वो जीत के आए, बहुमत में सरकार में है जी। अब कैसा लगेगा अगर कोई व्यक्ति ये आइडिया दे कि मोदी जी राष्ट्रपति नहीं बन सकते, और अगर ऐसा होता है तो 75 साल वाली जो बात है वो भी रह जाएगी। और मोदी जी कैसे विश्व को दिखाएंगे कि जैसे टीएन शेषन ने एक बार ये बताया कि चुनाव आयुक्त का रोल क्या होता है, उसी तरीके से मुझे लगता है मोदी जी भी राष्ट्रपति पद की जो
जो जो ताकत है जी। उसको कैसे कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, एक नया रूप देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएं तो ये देश हित में निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। जी। क्योंकि क्योंकि एक और बात है, अभी तक अकेले प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी ने तमाम देशों की यात्राएं कर ली, तमाम विश्व से रिलेशन बना लिए। जी। अब हमें मोदी जी को ये समझ आ गया कि विश्व देश की राजनीति के अलावा विश्व की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश के हर बड़े निर्णय को प्रभावित कर रही है। तो अगर एक प्रधानमंत्री देश में ताकत से काम करे और उसके बाद मुख्यमंत्री भी लगातार आगे बढ़ता चले, राष्ट्रपति भी आगे बढ़ता चले, तो कहीं ना कहीं देश के पास एक की जगह दो फोर्स हो जाएंगी और वो फोर्स मिलकर ज्यादा मजबूत काम करेंगी। जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी कुछ भी संभव है। क्या पता मोहन भागवत जी के निहितार्थ कुछ मायने हों, अन्यथा मुझे लगता है फिलहाल तो राजनीतिक कयासों का यूं तो कोई अंत नहीं है और कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका आने वाला नहीं है। वैसे गुप्ता साहब, मैं देश ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟੈਨਿਓਰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। और देखिए कुछ भी संभव है। अगर आपने जो बात छेड़ी है, एक राष्ट्र एक इलेक्शन, जो कि शुरू में होता भी आया तो होता है, तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा होगा। और ऐसा करने के लिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो सकता है 2 4 6 महीने साल तक बढ़ाना पड़े, क्योंकि सब लोगों को सारे राज्यों को सिंक करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है उसके लिए विशेष प्रावधान की जरूरत होगी। और हो सकता है मोदी जी को लग रहा है जो कार्यकाल जो काम में तीसरे कार्यकाल में नहीं कर पाया, वो एक्सटेंडेड कार्यकाल तक खींच के उन्हें समाप्त कर दूं और उसके बाद किसी नई पोजीशन पर जाऊं। देश के भविष्य के लिए, देश की मजबूत स्थिति के लिए मोदी जी हर वो कदम उठा लेंगे जो जरूरी होगा। उन्हें मान अपमान, खुशी और दुख का इस मामले में कोई एहसास नहीं है जी। तो मेरे हिसाब से हमें वक्त आने पर ही पता चलेगा कि क्या होता है। फिलहाल मेरी राय में मोहन भागवत का स्टेटमेंट का, इस फिलहाल की राजनीति का, मोदी जी के पद पर रहने या ना रहने का, आरएसएस के विवाद में भाजपा के साथ होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी ने। मैं तो कहूंगा कि इस समय भाजपा का गोल्डन समय चल रहा है, जिसे कहते हैं उत्तराधिकारियों के नाम पर तो लंबी फेहरिस्त है, किसी को भी मौका दिया जा सकता है जी। युवा चेहरों में योगी आदित्यनाथ से लेकर माधवराव सिंधिया तक, अनुराग ठाकुर से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, नीतीश राणे से लेकर मोहन यादव तक, उसके अलावा और जाने कितने लोग हैं, और इवन नए लोग भी आ सकते हैं। और इसके अलावा नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह तक, ऐसे ये लोग युवा नहीं रहे हैं, एजेड हो गए हैं, पर फिर भी युवा नेताओं की बड़ी फेयर। और स्मृति ईरानी को ले लीजिए, और इसके अलावा और भी कई नाम में ऐसे छूट रहे हैं जिनको लिया जा सकता है। तो अभी उत्तराधिकारी का तो कोई इशू ही नहीं है। आप राज्य की बात करिए, बीजेपी का स्टाइल देखिए, आप राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, जिसकी उम्मीद खुद वर्तमान में जो लीडर थी विजय राजे सिंधिया, उनका चेहरा देखने लायक था जब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हुआ। तो इनका तो भाजपा का तो स्टाइल है, ये व्यक्ति को बहुत पहले से तराश कर रख रहे होते हैं एज ए नॉर्मल स्टैचू, और वक्त पड़ने पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ये देखिए, ये हमारे देश का एक अच्छा विजन नजर आता है इसमें। आप ऐसे नहीं कि अगर कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल गांधी ही बनेगा, या कोई वो व्यक्ति बनेगा जो राहुल का कृपा पात्र है।
हम में से कितने लोगों ने मोहन यादव का नाम भी सुना था? जी हम लोगों से कितने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भी सुना था, जी। है ना? तो आप देखिए, और वही देखिए पंजाब में देखिए, जैसे बलराम जाखड़ का नाम आ रहा है, जबकि उसके पिताजी बड़े कांग्रेसी थे। जी तो सुनील जाखड़। भाजपा मुझे लगता है कि अच्छे चयन में यकीन करती है, परिवारवाद में यकीन नहीं करती है, ऐसा मुझे निजी तौर पे लगता है। ਵੈਸੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ अर्थ नहीं रह जाता इस हिसाब ਨਾਲ, क्योंकि एक भी चर्चा। मेरे ख्याल से ये देखिए, अभी जिस तरह के बात आपको याद होगा, मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि दो टर्म काम करूंगा और एक टर्म राजनीति करूंगा। तो इस वर्ष तो राजनीति करने का है, यानी 10 साल उन्होंने स्टेबिलिटी देके विश्व को, अल्पसंख्यकों को, देशवासियों को एक मैसेज दे दिया कि मोदी के राज में सुरक्षा में दिक्कत नहीं है, अल्पसंख्यकों को खतरा नहीं है। और अब राजनीति करने का समय आ गया। अगले 2 सालों में आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है देश में जी। बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनकी उम्मीद लोगों को नहीं होगी। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात के मुझे भी अंदाजे हैं, और उनके वो कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार होने वाला है, सुरक्षा में वृद्धि होने वाली है। देखिए किस तरीके से थोड़े दिनों में पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। डिफेंस के मामले में भारत एक बड़ी ताकत नजर आने लगा जी, है ना? आप देखिए सिंधु नदी के जल को रोक पाना, आप पाकिस्तान से 3 बार लड़ाई करके जीत चुके, तब भी इतना नहीं कर पाए कि अब सिंधु नदी का पानी रोक पाए। और मोदी जी ने एक घटना के बाद तुरंत रोक दिया, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है जी। ये झगड़ा चलता रहा कि भारत के विमान गिरे या नहीं गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ, हमने कितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन सिंधु नदी के मैटर पर कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं हुई, आम आदमी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी से पूछ ले सिंधु नदी का बॉर्डर रिवोक तो ट्रीटी सस्पेंड तो नहीं करोगे। और वही हुई। बिल्कुल गुप्ता जी, एक बड़ी ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 90 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਨਹੀਂ 78 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 90 ਟੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 37 ਟੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਸ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ उसका जवाब MEA ने भी दिता उस हिसाब के नाल, ते उन्होंने तो जवाब भी तलब किया हैगा। तो लगता कि ਜਿਹੜੇ देश के प्रधान मंत्री ने हुण तक टूर किए ने, इन्हां दा कोई फायदा होया? क्योंकि जदों पाकिस्तान ते भारत दे विचाले जंग वर्गे हालात सी तां उन्हां हालातां दे विचाले कोई मुल्क उस तरीके नाल नहीं खड़ा होया जिस तरीके नाल पाकिस्तान की बैक ते आण के कुछ अरब कंट्रियां, तुर्की वर्गे देश जां होर देश आण के खड़े हो गए सी। लगता कि ये जिहड़े विदेश टूअर्स ने इन्हां दा की असर हो रहा, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ है ਇੱਥੇ? देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि शांति और सुरक्षा की कोई कीमत नहीं है, इज्जत की कोई कीमत नहीं जी। हरदीप जी, अपना जो न्यूज चैनल है उसकी पूरे देश में वैल्यू एकदम से बढ़ जाए, इस बात के लिए कोई भी रकम बड़ी नहीं है, हर रकम छोटी है जी। तो देश की सुरक्षा के लिए अपने अपने अपना मान सम्मान है, उसकी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कुर्बान करने तैयार हो सकते हैं, जान भी दे देंगे, सम्मान नहीं जाने देंगे, होता है ना? तो देश का मान बढ़ाने को, देश की रक्षा के लिए और शांति के लिए अगर मोदी जी यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगह मिल रहे हैं, उसका मतलब यह है कि उसका कई 100 गुना सुरक्षा के हिस्से में, शांति के हिस्से में भारत में आएगा। इसलिए जो लोग ये पैसे की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो भारत के इंडियन नेवी सर्विसेज के क्रूज को जो है पिकनिक पार्टी में बदल देते थे, हजारों करोड़ का नुकसान कर देते। ये वो लोग थे जिन्होंने 3500 सिखों को इसलिए मार डाला क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या किसी एक ऐसे व्यक्ति ने की थी। ये इन लोगों का काम उतनी छोटी सोच को दिखाना है कि जनता भ्रमित हो जाए। मुझे लगता है कि हमें इस देश के देशवासियों को इतनी छोटी सोच पर आगे नहीं जाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आखिर मोदी ये किसके लिए कर रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को अमीर बनते हुए, चाहे अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, कितनी कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, कितने केस चल रहे हैं। मोदी की तो शादी, उनकी शादी भी नहीं है, आज उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, उनके भाई बहन माँ बाप कहाँ है? क्या उनका कोई भतीजा उनके साथ रह रहा है क्या? वो किसके लिए जोड़ रहे हैं? जब वो 11 साल मुख्यमंत्री रह के जब बाहर निकले, अपना सारा पैसा गुजरात की बच्चियों के लिए दान कर दिया,
तो आप सोचिए, जो व्यक्ति निस्वार्थ काम कर रहा है जी 18 घंटे काम कर रहा है, जो फाइल अपनी हवाई जहाज में भी क्लियर करता है, आप उस पर आरोप लगाकर विपक्ष अपना समय तो खराब कर सकता है, लेकिन मोदी जी का नुकसान, मैं ये बात कहना चाहता हूं। ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਹੀ ਦਿਖਾ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੀ। देखिए, दो बातें हैं जी पहली बात, भारत एक हिंदू बहुल देश है और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। अब इस्लामिक देशों में अपनी बड़ी राजनीति है। जी इस्लाम में दुनिया का जो सबसे पहले खलीफा हुआ वो तुर्की का था, यानी आज के टर्की यानी तुर्की का था। ये बादशाहत ईरान ने और सऊदी ने मिलकर छीन ली जी, तो वापस विश्व के इस्लामिक जगत का खलीफा बनना है। अब उसके लिए हर, जैसे कहते हैं ना, कोई गली का नेता होता है तो हर मजलूम के साथ खड़ा हो जाता है जी। तो तुर्की ने भी वही किया कि पाकिस्तान के साथ खड़े होकर विश्व के मुसलमानों को ये दिखाया कि आज गरीब और कमजोर मुसलमान जैसे पाकिस्तान के साथ उनका कोई खलीफा खड़ा है। तो इनके राजनीतिक इन्हें इनकी दोस्ती का मजा नहीं है, इन्हें पाकिस्तान से दोस्ती की वजह से नहीं है, तो जितने पाकिस्तान मुसलमान उतने हिंदुस्तान मुसलमान है, पर उनकी इस्लामिक जगत में बहावाई लूटने का। पर चीन भी आन के पाकिस्तान चीन भी आन के पाकिस्तान दे नाल ही खड़े इत्थे भारत दी बैक नहीं, पाकिस्तान का नहीं किया। देखिए, अब सुनिए, चीन की राजनीति क्या है। हम सब जानते हैं चीन एक बड़ा व्यापारी देश है जी, जिसके लिए रुपए से ज्यादा दौलत, व्यापार से बड़ा कुछ नहीं है। आज वो अमेरिका से लड़ लेगा, कल अमेरिका से दोस्ती कर लेगा, रूस से भी उसकी दोस्ती हो जाएगी, रूस से झगड़ा भी हो जाएगा। चीन को अपने हथियार बेचने हैं और वो हथियार टेस्ट करने हैं। चीन अब हथियारों का बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है जी। अगर उसने हथियार टेस्ट नहीं किए तो उसके हथियारों को लोग खरीदेंगे नहीं, इसलिए उसने धुआंधार हथियार भेजे हैं जी। और इन हथियारों की कीमत पाकिस्तान की पाई बेचकर वसूल कर लेगा। 150 से ज्यादा बंदरगाह चीन पूरे विश्व के खरीद चुका है जी। ऑस्ट्रेलिया का जैसे श्रीलंका को बर्बाद किया था ना चीन ने, ऐसे ही चीन पाकिस्तान को भी आज नहीं तो कल बर्बाद कर देगा। पाकिस्तानी मित्र ये समझ नहीं पा रहे हैं और जब तक समझेंगे ये चीन इनकी गर्दन दबोच चुका हो जी। तो चीन पर विश्वास करना तो एक बहुत बड़ी भूल है पाकिस्तान की। और मैं क्यों समझाऊं, पाकिस्तान कोई हमारा मित्र देश तो है नहीं। जी जी, ठीक है गुप्ता साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, तमाम ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਭਾਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਾਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਬੈਠਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।